Good morning. I think good morning, good noon, everyone. Welcome to this Facebook Live. Women Shine May month. May we are doing many things on mental health awareness because it is a mental health awareness month. So we have done couple of lives. Plus we have written articles also on that. So you may visit our website. And also the topic today, which is very important. We हमारे साथ कुछ ना कुछ issues होते हैं कुछ and not only issues हमें कुछ काम भी होता है. So हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कुछ support groups होते हैं, so we get lot of support from there. So, like in Facebook, there are many groups. Like there are groups for women entrepreneurs. There are groups for women who want to sell on e-commerce. There are books. There are groups on books also. Book readers also. So there are various groups according to the focus sector basically. So इसी उसमें हमारे पास एक group है which is Proud Single Parents Group (PSP Group). जो कि so therefore the topic today is like the power of connection, building supportive communities. So we'll talk about this particular community कि like कैसे like okay we talk about that this is a group wherein we support each other. So let's bring in on screen the admin of the group, Nidhi Sharma. Hi Yeah, hi, Nidhi. good afternoon. Hi, good afternoon, Aparna ma'am. How are you doing? Very well, Nidhi. How are you? I am also doing very much great. So, first of all, I would like to congratulate. My gratitude is there that, you are handling such a sensitive and important issue, because in India, I think, in my personal opinion, such kind of issues are always, being discussed behind the back, Yeah, yeah. behind the curtains. Nobody is though in raised up societies, or you can say high profile people, such topic can be discussed openly, but still in when you talk about middle class or upper middle class or lower class, these topics are not highlighted till date. So Correct, it correct. is very honorable for me also to stand and sit with you here. And when we are talking about such a topic, and when I am being part of such a community where you can see the maximum number of vulnerable people who can get into this zone are the maximum stage. So Correct, but correct. still they are not identified, so that's how. So Nidhi, like before we move on, like what is the community, what is the objective? I would like to know Right. about you first. Like what are you? What are you doing? Because this is a social initiative of yours, Right, right? So what right, are you yes. into? What is Nidhi Sharma? Like who is Nidhi Sharma basically? We want to know that. Right, right. So when we talk about myself, first of all, I am a very proud mother of two boys. I have two boys. Elder one is 18 and younger one is 12. So if you talk about my this journey being a single parent, it is almost more than 9 years now. So when initially I started, they were very young, just 2.5 and 10. So it was a journey which has evolved me. When you talk about strength, gaining strength, resilience, everything which is accumulated now. And professionally, I do the main thing, when you talk about my profession, I am a talent acquisition expert. So basically, coming from the corporate experience of 12 years, 3 years back during COVID, I joined this consulting company as a service delivery Okay, head. So okay, professionally, I am into engineering and technology hiring basically, and I work for telecom systems and semiconductor product R&Ds. So okay. we provide Great. resources for them. And Yeah. apart from that, being a flair of writing, or you can say a flair of understanding about the human emotions and personality development of different people, what I do is I have my own website, where I put on. I used to write this articles on parenting. So that is one thing which Okay. has been had taken my interest on a very good level. When we talk about psychological issues, there are many, but coming when you have two kids, that to a age gap of 7 years, so there are many different challenges. And Hmm. considering every child is unique, every child is different, right? So analyzing both of them, and then seeing so many kids around, that that evolved me as a person ki ha, I should do something. ऐसा कुछ curiosity था कि I should learn something like this, कि इसमें आपको ऐसा करना चाहिए. So when you talk about psychology of a kid, आप अपने experiences से बहुत कुछ सीख सकते हो. But to have that, you should have a proper channel. And by when we say channel, तो आपके पास एक education degree उस चीज का होना चाहिए. So Hmm. for that Hmm. only I got enrolled into this master's course, so that मैं मेरे पास जो बच्चे आते हैं या मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, अपने Right. एक्सपीरियंस द्वारा मैं उनको एक टेक्निकल एक्सपर्टीज भी दे सकूं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली द Hmm. एजुकेशन इज आल्सो नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो
when I say talk about writing, so I do write articles on the parenting, highlighting what all the struggles, be it single parents, be it dual parent, anybody, any parent can have any Mm. challenges when we Yeah, talk yeah, about a kid. yes, yeah, yeah, Because raising a kid is not about the thing when you are dual parenting or a solo parenting, right? yeah. So there I have addressed many multiple topics, like, the recent things are like bullying, how to, get hold on your child's emotion, how to make your child accept the thing that you are going through certain phase in your life, and you can also have behavior pattern changes. एंड बच्चे Mm-hmm. के साथ कैसे कैसे आप जैसे से होता है कि उनके बिहेवियर के पीछे why your child is lying to you, why your child Right, is right, getting so much aggressive with you, why your child is not even listening to you, he is listening everybody right. around, everybody is Mm-hmm. saying बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत लिसनर है, लेकिन वो बच्चा आपकी नहीं सुनता है. So there is हाँ, also a psychology point behind that. बिल्कुल, So that बिल्कुल, is बिल्कुल. my intent. So my apart from my work, so this is the thing which I do, and I do address parents with the different issues that they come up to me. And simultaneously, so that graduated into this idea of mine which I was discussing with you some time back, that we should include this technology and psychological thing into one product, right? So that will Mm-hmm. be helping me in understanding the child psychology. Because Mm-hmm. there are many aspects when you talk about a child. हम बच्चे की जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं. So I have just tied up with somebody who is a very good techie, coming up from IIT and an IIM background. So we are working on a product for kids basically. So what we will be doing is we will be doing the psychological assessment of the kids. Okay, that will be including your psychological and clinical part also. So we'll prepare a test for that, and then we'll be able to define that problem Okay. कैलकुलेटिव वे. तो अभी तक Okay. तो हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंसेस से कर रहे थे कि 10 लोगों से बात की, उनका एक्सपीरियंस Mm-hmm. सुना, मेरा बताया. सो नाउ वी आर आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इन अ टेक्निकल वे कि ऐसा अगर पैटर्न है तो मैं बच्चे को टेस्ट करवा के आई वुड डिफाइन दैट प्रॉब्लम एंड देन वी विल सजेस्ट यू द सोल्यूशन. मतलब ऐसी हवा में कोई सोल्यूशन हाँ, देने की हाँ, बजाय correct, इन अ correct. टेक्निकल. So this is all about me, and I live with my parents here in Faridabad, and my Okay. eldest son is doing his engineering. Chota wala, he is in class 8th now. He is quite Okay. younger. I have 7 years of gap. So elder one is like quite shy and everything, and Chota wala is quite naughty. So as always, like two brothers are there. So that's how. And this talking about this community, when we talk about, that's very close to my heart. It's like a Yeah, baby. how it started, like how it started, because you must have thought something कि चलो इस तरह के कुछ Right. कम्युनिटी एड्रेस करें. किस तरह Right. से ये स्टार्ट हुआ एंड क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था पीएसपी स्टार्ट करने का? See, I'll tell you what happened was initially जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो एज अ सिंगल पेरेंट, आप देखते हो कि यू आर ऑल अलोन, राइट? तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आते हो, जब आप खड़े होते हो, जब आप वो अपने अंदर वो एक पावर लेके आते हो, नाउ यू आर एबल टू हैंडल द इश्यूज हम्म. मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली. बहुत तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं जिसमें से हम बाकी चीजों पे तो काम करते हैं साथ साथ कि मुझे अकेले काम करना है, सो आई हैव टू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी. ठीक है, मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट होना है, सो आई विल डू दिस कोर्स और ऐसा वाला करके आई विल मेक माई सोशल प्रेजेंस. लेकिन जो चीज हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज योर मेंटल हेल्थ व्हेन वी टॉक अबाउट अ जर्नी ऑफ अ सिंगल पेरेंट. तो जब मैंने इनिशियली ये रियलाइज किया कि ड्यूरिंग माई इनिशियल ईयर्स देयर वाज नो सच प्लेटफॉर्म्स व्हिच आई फाउंड. Yeah. तो जब मुझे लगा कि नाउ I can also help people. It started in COVID basically, right? So coming from the HR and having some good contacts with people, because I stayed in Gurgaon for 10 years. So वहाँ पे Okay. कुछ local जैसे बीजेपी की 2-3 leaders हैं. There's a family husband wife. They are Okay. MLAs from there, and then there is a lady Nidhi Malhotra. She's also from BJP. She's an Okay. active member there. तो मेरा उनके साथ काफी closed connect था when I was in Gurgaon. सो इन कोविड जैसे क्या हुआ ना कि स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स थे, वो जो मुझे जानते थे, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, राइट? तो हमें लोगों की प्रॉब्लम्स पता लगी कि किसी को बेड चाहिए, किसी को हॉस्पिटल चाहिए, बिकॉज एनसीआर सिचुएशन वाज पैथेटिक, तो उस समय मैंने ये जो लोग थे मेरे जो नेटवर्क के थे, देन आई हैव अ नेटवर्क्स ऑफ फ्यू डॉक्टर्स विच आई वाज अवेयर, जिनको मैं जानती थी, एंड मेरे जिनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे. तो फॉर्चुनेटली उन लोगों ने मेरी उस सिचुएशन में बहुत हेल्प करी. तो जो भी मेरे पास सिंगल पेरेंट्स आते थे हेल्प मांगने के लिए कि निधि आपका सोर्स है, आप एक मुझे कोई हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो, या मुझे सिलेंडर अरेंज करवा दो, या
मेडिसिन अरेंज करवा दो या खाना अरेंज करवा दो। कई बार क्या था कि फिर हम लोगों ने क्या किया, 3-4 लोगों ने एक ग्रुप बनाया एंड वी स्टार्टेड कोचिंग अबाउट दिस थिंग फ्रॉम आवर नेटवर्क। अच्छा, कि किसी को, okay, हाँ, हमने उन 4 लोगों को हम वॉलंटियर बने कि कोविड हाँ, फैमिलीज में, जैसे मैं फरीदाबाद से थी, एक दिल्ली से था, एक गुड़गांव से था, तो इनिशियली हम लोगों ने ये भी किया कि वी यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। और आपका स्विगी से एक स्विगी जीनी होता है, जैसे ना हाँ, लोग, हम वॉलंटियर डालते थे, मैंने व्हाट्सएप पे अपने डाला, फेसबुक पे डाला। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कैसे लिए कि हम एक दिन में 3 घरों में खाना भेज सकते हैं। और उस टाइम पे स्विगी जीनी वाज वेरी लेस कॉस्टली, मतलब हम्म, मेरे फरीदाबाद में ही इफ आई एम सेंडिंग अ फूड टू 4 to 5 kilometers अवे, इट वाज जस्ट चार्जिंग मी 30 rupees। तो अच्छा, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो अगर मैं खाना अपने हम्म, लिए, हमारे लिए बन रहा है, तो वी कैन सेंड अ फूड फॉर अ हाँ, कपल, तो हम उनको भी हम्म, भेज सकते हैं, बिकॉज कोविड में तो सब लोग किसी को हाथ भी नहीं लगाते थे। बिल्कुल, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी तो सब। हाँ, बहुत ज्यादा। तो उस समय क्या हुआ, ये ऐसे स्टार्ट हुआ। एंड देन जब कोविड गया एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, देन दीज आर 4-5 पीपल हु हैव वर्क दिस थिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हम कर ही रहे हैं, दैट इज अ सोशल सर्विस। लाइक कोई हमारे पास हम्म, आया कि किसी बच्चे की फीस में कोई प्रॉब्लम है, या कोई डॉक्टर रेफर करना है, आप मुझे कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रेफर कर दो, या मुझे कोई गायनिक रेफर कर दो, ऑर्थो कर दो मेरे फादर के लिए। हम्म, तो हम्म, मुझे उस समय ये रियलाइज हुआ कि कि वी आर जस्ट 3-4 पीपल, लेट अस क्रिएट अ कम्युनिटी, राइट। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि उस समय जो थॉट था, जो हम कहते हैं ना इंटेंट जो आया, वो इंटेंट ये आया कि नाउ यू आर देयर। जब तुम्हारी वो सिचुएशन थी, देयर वाज नो सच सपोर्ट कम्युनिटीज, राइट। सो तब तुम अकेले थे, बट नाउ राइट, तुम हो, राइट। सो नाउ हाँ, व्हाट यू कैन मेक अ चेंज टू द सोसाइटी, क्रिएट अ हम्म, प्लेटफॉर्म, एड्रेस हम्म, पीपल, identify people who genuinely need support, right? हम्म, Who are genuinely looking for a support platform or a हम्म, conversation. तो वहां हम्म, से क्या हुआ कि हम लोगों ने 5 लोगों ने एक फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल। फिर हम लोगों ने 1-2 सोशल मीट्स करे, कुछ लोग हमसे मिलने आए। कुछ लोग क्या थे, दिल्ली में 2-3 और भी सिंगल पेरेंट्स ग्रुप चलते हैं, बट दे आर मोर ऑफ लाइक अ सोशलाइजिंग। दे ओके, आर लाइक वीकेंड पे आज पार्टी यहाँ हो रही है, आज हाँ, पार्टी यहाँ हो हाँ, रही है ना, नॉर्मल राइट, सोशलाइजिंग। तो एक इसमें आप पन्ना मैम, एक चीज ये होती है कि जो लोग पार्टीज भी करते हैं, बट उनके अंदर भी ना कभी ये चीज जरूर होती है कि ठीक है, एज अ सिंगल पेरेंट मैं वीकेंड पे पार्टी तो क्लब में जाके कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अगर ऐसा सपोर्ट फंक्शन कोई मिल जाए ना, तो ये मेरे लिए एक एडिशनल हेल्प होगा। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, को लगता है व्हाई कि ठीक नॉट, है, सेकेंडरी चीज है, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो भी हो रहा है, ये भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे बहुत लोग जो दूसरे ग्रुप्स में थे वो हमसे जुड़े। फिर मैंने आइडेंटिफाई किए प्रोफेशनल्स, लाइक हु आर ओके, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, जो कि राइट, पैन इंडिया जो मेरे पास आए, जिसमें हाँ, कई तो ऐसे भी हैं। आई हैव अ लेडी, ही इज लेक्चरर इन आईआईटी, शी इज इन हम्म, गोवा। तो मैंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया और अपनी कम्युनिटी में ऐड किया, सो दैट मुझे पता चल सके हर फील्ड का एक्सपीरियंस। क्योंकि हम्म, मेरे पास अगर कोई आता है, मुझे बोलता है कि आई नीड अ डॉक्टर, राइट। हम्म, तो अगर मैं अपने कम्युनिटी में एक डॉक्टर लेके आती हूँ, हर एक स्पेशलाइज्ड का, एक चाइल्ड डॉक्टर, हाँ, पीडियाट्रिशियन, एक हम्म, ऑर्थो, तो एटलीस्ट क्या होगा कि वो पेरेंट रात को, अगर किसी बच्चे की रात को 11 बजे तबीयत खराब हुई है, तो रादर गोइंग टू अ डॉक्टर नेक्स्ट डे, उसको एक इमीडिएट कॉल कंसल्टेशन मिल जाएगा, करेक्ट, 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 है ना। तो वो, क्योंकि पैनिक हो जाता है, स्पेशली जब आप अकेले रहते हो, आप बहुत फैमिली होता के है, साथ नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप एकदम से घबरा जाओगे रात को। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि हमारे बच्चे को 103 टेम्परेचर हो गया, स्पेशली हु आर यंग मदर्स, 22 ओके, 23 अकेले रहते हैं, है ना, इतना सपोर्ट नहीं है। तो वो हम्म, मिडनाइट कभी भी कॉल करते हैं, 11 बजे 12 बजे, कि नी दीदी ऐसा हो गया, नी दीदी। तो उनको फिर वो काम डाउन करना सबसे पहले, कि हम्म, दिस हैपेंस, बिकॉज हमारे साथ भी ये हुआ था ना, हम भी पैनिक करते थे। तो हाँ, वहां से ये स्टेप बाय स्टेप ना हम लोग बढ़ते गए आगे, आफ्टर एडिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। उसके बाद क्या था कि आई ट्राइड एडिंग पीपल हु आर फ्रॉम द डिफरेंट एज ग्रुप्स। क्योंकि हम्म, देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल मॉम है, शी इज 50 years ओल्ड। उनका सिंगल पेरेंट जर्नी स्टार्ट हुआ व्हेन शी वाज 30-35। तो ग्रेजुअली पिछले 15 साल में उनकी बहुत लर्निंग हुई, है हाँ, ना। और एक सिंगल मॉम आई है जो कि जिसको 6 महीना हुआ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी सोच रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं हम्म, कि अभी 1 ही महीना हुआ है, आई एम जस्ट कंफ्यूज कि मुझे क्या करना हाँ, चाहिए। हाँ, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए भी आज की डेट में कई 2-3 ऐसी हमारे यहाँ पे मदर्स हैं जो मुझसे 10 साल 15 साल बड़ी हैं।
So I take them as my role model also. कि I want my children to be like their kids. कि जिस तरीके ने उन्होंने अपने बच्चों को रेस किया जितनी स्ट्रेंथ के साथ और उनके इतने हार्डशिप सुने, तो वो चीज हो जाती है ना कि आपको भी एक एग्जाम्पल मिलता है. अब आज मेरे पास जो मैं तो जो 22-23 वाले बच्चे हैं, बिकॉज आई एम 40, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्ल्स हैं 22-20, दे आर लाइक अ किड्स फॉर मी ऑल्सो, राइट, हाफ ऑफ माई एज. तो वो एक बच्चे हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है, राइट. सो वहां पे एक वो फीलिंग आती है कि नहीं यार, यू शुड डू दिस. तो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए. फिर हम लोगों ने ऑनलाइन सेशंस किए, हम जैसे होता है मीटिंग्स करवाना. फिर हम लोगों ने फेस टू फेस मीटअप्स करने शुरू किए. हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया फेस्टिवल सबसे पहले. क्योंकि क्या कि आप देखोगे कि सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं, दे जनरली डोंट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल जनरल. क्योंकि वो क्या होता है, आप बहुत लेफ्ट आउट फील करते हो अपनी फैमिली में. सब लोग खुश हैं एंड यू डोंट वांट टू बी, आप ऐसा सैड भी नहीं रह सकते कि किसी को बोल नहीं सकते कि नहीं यार आप मत सेलिब्रेट करो. किसी की एनिवर्सरी आई है या किसी का बर्थडे तो चलो यू ऑल्सो हैव, बट स्पेशली इन एनिवर्सरीज, मैरिजेस, ऐसा सोशल गैदरिंग आप किसी को ये शो नहीं कर सकते यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू कि जस्ट बिकॉज दे आर हैप्पी दैट इज द रीजन यू आर नॉट हैप्पी. कि तुम्हें वो खुशी नहीं मिल रही है, दैट इज द रीजन यू आर नॉट हैप्पी इफ दे आर हैप्पी. तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था. तो इनिशियली हम लोग अभी सारे फेस्टिवल्स हम लोग साथ मनाते हैं, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर. तो वो हमने अभी मुंबई, पुणे, हाँ हमने अभी सिटी वाइज मैंने ये डिवाइड कर दिया है. तो उसमें क्या होता है, we have 17 cities. 17 cities chapter. Oh, great. Yes, right. And then total members hai? We have 4,500. 4,500 is the total strength. Oh my God. So and still we are very much pending, because hota kya hai ki we have a form, we validate the person who is supposed to become, just to check if he or she is genuine enough. और तो उसमें क्या आता है, बहुत सारा वैलिडेशन में बहुत सारा पेंडेंसी में भी रहते हैं कुछ फॉर्म्स, क्योंकि जिनका कंप्लीट नहीं है या आधा लिखा हुआ है या कुछ, तो उनको हम छोड़ देते हैं, वी डोंट ऐड देम. बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी है कि आप वैलिडेट करो, बिकॉज अदरवाइज कोई भी जना से ज्वाइन कर सकता है. करेक्ट, राइट. एंड स्पेशली फेसबुक पे तो है ही है, बट when it comes to WhatsApp ग्रुप, क्योंकि WhatsApp इज अ वेरी क्लोज स्पेस, है ना. हम लोग जो इवेंट्स करते हैं, हम पार्टीज करते हैं, बच्चों के साथ गैदरिंग, एवरीबडी शेयर्स देयर पिक्चर्स, वीडियोस, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली व्हेन दे आर शोइंग कॉन्फिडेंस टू अ कम्युनिटी, सो वी शुड मेंटेन दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड फिर कॉन्फिडेंस एक बॉन्डिंग बढ़ जाए, डेवलप हो जाती है. राइट, यस. बिकॉज जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, बिकॉज आई सी दैट आप बिलीव नहीं करोगे, मेजॉरिटी ऑफ आवर मेंबर्स आर फीमेल्स. When we talk about, if for 100 we have just 10 males, so like because the challenge is like males are more into this parties and weekend funs and also they are scattered in every other group, but in PSP the majority of the population is mothers. Their fathers are very less, so we have fathers like who have custodial, who are custodial fathers, and especially who have lost their partners, sorry. So that is a challenge. तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि व्हेन पीपल, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो एक दूसरे को वहां पे आके मिलते हैं, जब आप घर पे रहते हो, आप बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है या फिर सोसाइटी में खेल रहा है, तो उसके लिए ना ये एक्सेप्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आई डोंट हैव अ फादर एट माई होम या आई डोंट हैव अ मदर एट माई होम. उसे लगता है कि आई एम डिफरेंट, है ना, कि मैं बाय मी, आई मीन मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ तो उनकी फादर्स हैं, मेरे सारी फ्रेंड्स के साथ तो उनकी मम्मा आती हैं, है ना. ऐसे बच्चों में बहुत होता है. तो जब हम ऐसे कम्युनिटीज गेट टुगेदर करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि फादर्स जो है वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, मदर्स अपने बच्चों को लेके आती हैं. सो चिल्ड्रन इंटरेक्ट, राइट, चिल्ड्रन सी, बिकॉज बच्चे क्या है, जो देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं. यू डोंट नीड टू टीच देम कि ऐसा होता है वैसा होता है, व्हाट दे सी दे विल ऑब्जर्व. तो वहां पे आके वो जब वो देखते हैं ना कि देयर आर सो मेनी किड्स, ऐसे भी लोग हैं, देखो मम्मा, जैसे विद माय सन आई हैड अ वेरी टेरिबल इनिशियल थिंग्स विद माय यंगर सन 5 साल पहले, क्योंकि ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग इमोशनली कि नो वी डोंट हैव अ फादर. तो मैंने जब ये मीटअप्स करने शुरू किए, हमने कम्युनिटी बनाई, मैं उसे बाहर लेके गई, फिर वो धीरे धीरे ना उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई कि ये नॉर्मल है, दिस इज न्यू नॉर्मल, न्यू थिंग नाउ. क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी मम्मा के साथ नहीं आते हैं, है ना, कितने उस पार्टी में हम जाते हैं, देखो वो एक मेरी आपकी फ्रेंड आई थी, वो आपके एक फ्रेंड आए थे, देखो उनकी जो बेटी है उसकी मम्मा नहीं है, है ना. तो वो बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस हो गया.
So in a way हमारे लिए साथ साथ बच्चे भी important है. So when we talk about mental well-being, so such communities help in mental well-being of kids also. वो लोग इतना फ्री फील करते हैं बात करने में. Kids have made such a beautiful bonding among each other. Like for my younger son, there are 5 boys who are in the same age group, and they eagerly wait for the, they just eagerly wait for the next meetup. कि मम्मा अब नेक्स्ट कब होगा, अब नेक्स्ट कब होगा. लाइक रिसेंटली वी फिनिश्ड होली, सो हम लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक किया था, हम वहाँ ओवरनाइट रुके और दिन में सब बच्चों ने होली खेली और नेक्स्ट डे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया. सो देयर वर ऑलमोस्ट लाइक 72 पीपल व्हिच वेंट टू दैट रिजॉर्ट. सो दैट वाज अ ह्यूज ग्रुप, एंड विद सो मेनी किड्स, जिसमें आपके 30 के आसपास अडल्ट्स थे एंड 37 किड्स वर देयर. सो वहां पे वो बॉन्डिंग होता है ना. ओवरनाइट हम रुके, बच्चे रात में वहां पे रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में हैं, भाग रहे हैं, कोई लॉन में खेल रहा है, वो बात करते हैं आपस में, दे बॉन्ड वेल. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ना दोस्ती भी बन रही है फ्यूचर के लिए, जहां से वो बच्चे ना रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है ना, एंड वो मेरी जैसा ही, उसको भी ये प्रॉब्लम है तो ही विल अंडरस्टैंड मी. स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे ना आपस में एक दूसरे को इतना नहीं समझते. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई हैव फेस दिस चैलेंज. स्पेशली जो बच्चे हैं जिनके पास दोनों पेरेंट्स हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट थिंग. छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं. तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा इवॉल्व करी हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे हमारा ये टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, सो आई थिंक कि मेंटल हेल्थ वेलनेस बड़ों के साथ साथ ना बच्चों की भी बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रही है. बच्चे खुश हैं, सबसे बड़ी बात है. द किड्स हु आर नॉट टॉक, जैसे एक लेडी है, उनका बेटा किसी से बात नहीं करता था, बहुत ज्यादा मतलब ना चुप चुप रहता था. देन उनका कुछ अपना फाइनेंशियल इश्यूज भी है, शी कैन नॉट अटेंड द गैदरिंग, बट मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया, आप आओ, वी विल सी द फाइनेंसेस, आप आओ अपने बेटे को लेके. देन शी स्टार्टेड कमिंग. लास्ट ईयर वो दिवाली पे आई थी, फिर वो एक और हम पिकनिक पे गए वहां आई थी. तो उनके बेटे ने जब हमसे बात करी, उसने अपने फ्रेंड्स बनाए, उसने बात की. So now it is a good bond. अब जैसे वो मुझे मौसी बोलता है, तो whenever we have a Zoom meetings, हम लोग Google Meet रखते हैं over the weekend, तो बच्चे बहुत interact करते हैं. अभी हमने जैसे लास्ट वीकेंड हम लोगों ने एक इवनिंग सेशन रखा था बच्चों के लिए, पेंट योर इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने सेशन रखा था फ्रॉम द किड्स लाइक 5 to 14 years. तो देयर वर लाइक 30-35 किड्स हु जॉइन्ड द गूगल मीट. एंड यू वोंट बिलीव, मतलब लाइव मेरे सामने वो बच्चे थे, पेरेंट्स वर नॉट देयर, एंड दे वर सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मी. वो मेरे सामने से स्क्रीन पे बैठे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं. और उसके बाद जब सेशन खत्म हुआ, हाफ एन आवर के बाद सबने मुझे अपना ड्राइंग दिखाया. हेलो निधि आंटी, मैंने ये बनाया है, दिस इज माय थिंग, दिस इज माय थिंग. और उसके बाद हम लोगों ने सबकी एक ग्रुप पिक्चर ली, और आई दैट इन द ग्रुप ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप. तो ना बच्चों के अंदर एक बहुत बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है. There is a place who appreciate us. Right. तो वो बहुत खुश था, because the happiness, you won't be believing this thing. जो happiness था बच्चों का, उनके पेरेंट्स का बाद में जो feedback था कि they want continue this kind of session. So I'm just thinking next week we'll have a storytelling kind of session for small kids. कि everybody. आप ये बात बताओ कि like you are working, right? You're full time. You're working Monday to Friday. So when do you get time to, because you have 4,500, right, members in your community. Yes, right. सबको ढूंढना, सबको सर्च करना, सारे chapters बनाना, and you are handling with the issues as well. How do you get time for all this? See, I'll tell you, it is like creating a platform जहाँ पे आपको आपके supporting hands बन सकें, right? You cannot do anything alone. That is also a fact. आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक एक आइडिया होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द राइट पीपल विद यू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई इवेंट कर रही हूँ, मैंने जैसे होली का इवेंट किया, सो दैट वाज लाइक आइडिया मैंने दिया कि वी शुड गो है. तो उसमें क्या होता है कि एवरी टाइम वी डू अ इवेंट, चाहे वर्चुअल चाहे फिजिकल, आई आस्क फॉर द वॉलंटियर्स एंड पीपल कम टू मी अपने आप कि निधि, आई वांट टू वॉलंटियर फॉर दिस, आई वांट टू वर्क फॉर दिस. तो उससे क्या होता है कि माय वर्क इज 99% फिनिश्ड फर्स्ट लेवल पे, ठीक है ना. तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उनको बताना है कि दिस इज हाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट. तो एक कोई इंसान है वो फाइनेंसेस देख लेगा, एक कोई इंसान है वो वहां जाके पूरा अरेंजमेंट्स देख लेगा, एक जैसे कोई हमने ऑर्गेनाइज कर दिया तो 2 मैंने मेंबर्स ऐसे असाइन कर दिए हु विल बी कीपिंग किड्स बिजी वहां पे, क्योंकि हम बच्चों की एक्टिविटीज करवाएंगे. तो वो ना मैं सेग्रीगेट करके करते हैं. इट इज नॉट अ वन मैन शो.
It is not a one person show जो मैं कहूँ कि only I am doing it. No, not at all. I have many people and I will be very grateful to all of them, because on one message or one call from me, if I tell them that I need this support, many of the members are there who wholeheartedly help me without any thing कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए नहीं. I mean, it is just some people are very much attached to this thing. They feel it is a family, and many members are there who have now started treating this as a family. So family में क्या होता है ना कि हमने कोई अगर इवेंट मान लो किसी का कोई बर्थडे है, ठीक है, हाँ, तो और सब everybody सब supports. करते हैं, हाँ, तो सब करते हैं. तो दिस हैपेंस विद एवरी इवेंट. मैं अगर कोई जैसे अभी लास्ट मंथ वी हैड अ करियर काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 8th to 12th. तो मैंने I just figure it out from the industry which I know. So I brought 2 doctors, 2 IITians, 2 people from this investment banking, 2 management people. मैं उन 8 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई. We had a Google form. हमने पूरे पेरेंट्स से फॉर्म भरवाया. We scripted out on 15 major questions that need to be. तो अब सारे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया. That was a Q&A session with experts. So उसमें भी क्या था कि there was people who were helping me out. कि कैसे मैं कर सकती हूँ. इट इज लाइक आपको कुछ भी इवेंट को अगर आपको कुछ भी आपके माइंड में है तो आप उसे अकेले नहीं कर सकते, राइट? सो व्हेन यू से कि आप सब कुछ ऐसे कैसे कर लेते हो, सो आई वुड से कि कई बार क्या होता है ना कि इट इज अ विजन इनसाइड यू, बिकॉज आपको लगता है माय आइडिया इज ओनली वन दैट जो चीज मैंने अकेले फेस करी है ना, आई डोंट वांट पीपल टू फेस दैट. So if you can create that kind of atmosphere, if you can create such forum जहां से आप मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सको, undoubtedly nothing better than that. That's so sweet, Liv. And but again मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, because ये तो हुआ जब हमने सारी कम्युनिटीज बना ली, हमने एडमिन बना दिए. आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल फेज व्हेन यू थॉट ऑफ डूइंग इट. आपने पहले एक चैप्टर बनाया, दूसरा बनाया, तो आपने कैसे सबको रीच आउट किया? आई नो बस अपने फेसबुक के थ्रू ही सबको रीच आउट किया होगा, बट देन इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम. आई नो कितना डिफिकल्ट होता है कम्युनिटी को बढ़ाना, and then उस पे regular maintain करना उस community को. This is very important. Correct, and also right. I've seen that you have got a job group as well, WhatsApp group. Right, yes. We have a Tell me about community. that as well. So I'll tell you one by one. Like what happened was, like we didn't जैसे आपने बोला कि how to expand the community. So it is just a word of mouth. I'll be very honest. We never done any kind of marketing campaign. We never done any kind of promotion post anywhere, right? It is just a word of mouth that Nidhi Sharma is there from Delhi and she runs a community. So क्या होता है ना, एक की हेल्प करा तो वो 2 को जाके बोलेगा, फिर 4 को एंड 8 को एंड 10 को. देन पीपल स्टार्टेड पोचिंग इन. उसमें से कुछ लोग ऐसे आए जो बोलते थे कि हम हेल्प करना चाहते हैं, आई वांट टू बीइंग अ हेल्पिंग हैंड विद यू. तो वहां से मुझे वो हेल्पर्स मिल गए. कुछ लोग थे जो परेशानी लेके आते थे, वहां से मुझे वो लोग मिल गए जो ऑलरेडी जिनको मैं चाहती थी कि रीच आउट करना. तो वो अपने आप आते गए. ठीक है, यू कैन एनर्जी अट्रैक्शन माइट बी और एनर्जी कॉन्वर्सेशन, तो वो भी एक चीज रहती है. जैसे आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, राइट? सो the day we spoke, I had a thing in my mind that yes, for this particular city also we can have a setup kind of a thing with help of yours, right? So वही होता है, talk to somebody ना, you start immediately connecting, and especially when you come from a psychology background ना, तो ये connect quick होता है कि you just can identify somebody कि हाँ ये आपके लिए एक asset है, this member will be an asset. So ऐसा वाला. So जैसे आपने मुझे बोला कि jobs community, so I'll tell you, initially it was just a proud single parents where we have both moms and dads. Then what happened was, it was like, क्योंकि क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, 250-300 लोग व्हाट्सएप पे आ गए, तो इट वाज मोर ऑफ अ चिट चैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो उसमें क्या हुआ कि जो मदर्स थी, स्पेशली मदर्स के साथ क्या रहता है, उनके बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं कंपैरेटिव टू फादर्स. अनडाउटली, राइट? हम उसमें देयर इज नो कंपैरिजन, उनकी ज्यादा चैलेंजेस हैं. तो वहां पे फिर हमने क्या किया, वी केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर ओनली मदर्स. So then we created one another platform and we gave the name as Matra Chaya. Okay, so that is another baby child of ESP. The name is Matra Chaya. It is only for mothers. Okay. So वहाँ पे क्या चीज है कि उधर उस ग्रुप में there are no forwards allowed. There is no jokes. Jokes आप कर सकते हो, but ऐसा ना ऐसी कुछ भी भेज दिया वो सब नहीं करना है. Serious group basically. So
हाँ, सो इट इज लाइक ग्रीवेंस काइंड ऑफ थिंग, किसी को कुछ भी बोलना है तो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फीमेल जनरली व्हेन इट इज अ कॉमन ग्रुप, फीमेल्स थोड़ा सा ना हेजिटेंट फील करती हैं हाँ, कि अगर मैंने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख दिया तो एक वहां पे हम्म, 10 लोग नहीं हैं, वो मेरे बारे में हम्म, क्या सोचेंगे, मैं तो ऐसे हूँ, वो सोचेंगे इसको तो मेंटल हेल्थ है, इश्यूज हैं, हाँ, तो वो एक जजमेंट का एक डर होता है। तो उसको हम्म, हटाने के लिए मैंने ये मात्र छाया का प्लेटफॉर्म बनाया, बिकॉज अब वहां पे क्या है कि इवन इफ समबडी इज क्राइंग राइट, रात के 12 बजे पे अगर कोई रो रहा है अपने घर पे और किसी को जरूरत है कि कोई बात करे, सो एनीवन जस्ट कैन पुट वन मैसेज कि आई एम हम्म, इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हैविंग अ ब्रेकडाउन एंड आई नीड समबडी टू टॉक. So I'm very हम्म, much sure by the time it is like midnight, 1 or 2, any single person is always awake. तो क्या okay, होता है कि वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को किसी के इन लॉज की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो वहां पे उस ग्रुप में इट इज ओनली अबाउट एड्रेसिंग दिस सेंसिटिव इश्यूज. हम्म, और एक ये भी चीज हो जाती है कि जब एक कॉमन ग्रुप होता है जहाँ पे जोक्स भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो अगर बीच में कोई अपना क्वेरी डाल भी देगा ना, तो वो गुम हो जाता है. yeah, you tend to miss so many हाँ, important मिस हो things. जाता है. तो उसके लिए हमने फिर ये बनाया सो दैट दे शुड फील देयर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशन. Yeah, yeah, हम वहाँ कोई भी बात करते हैं, वेदर इट इज ऑफ एनी काइंड ऑफ नीड, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, बच्चों का, मेरा, पेरेंट्स का, हम कोई भी बात वहाँ पे कर सकते हैं. इवन वहाँ पे ये भी इश्यूज टॉक बात करते हैं लोग कि जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, आई डोंट नो हाउ टू मूव आउट, मुझे ये हाँ, प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये बच्चा मेरा ये प्रॉब्लम करता है, मेरा बच्चा मेरे ऊपर ही हाथ उठा रहा है. ऐसे भी मैंने इश्यूज देखे. तो दैट वाज क्रिएटेड अ सेफ थिंग फॉर द विमेन बेसिकली, कि हम्म, हम उनको कैसे मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ. देन हम्म, जब ये आया जॉब वाली बात, तो जॉब से मेरा एक कमिंग फ्रॉम द एचआर एंड टैलेंट एक्विजिशन बैकग्राउंड, देयर वाज ऑलवेज एन एजेंडा टू हेल्प पीपल टू फाइंड अ सूटेबल जॉब, राइट. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इवन इफ अब समबडी सिंगल पेरेंट और नॉट, मेरे 2-3 कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एचआर फ्रेटर्निटी से हैं, हु आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं. मैंने उनके साथ मिलकर, आई हैव 2 more पीपल हु आर सिंगल पेरेंट्स बट दे आर सीनियर पीपल, वो okay, डायरेक्टर हैं अलग अलग कंपनीज में. मैंने उनके साथ ये सोचा कि वी शुड क्रिएट वन मोर एडिशनल थिंग. जॉब कम्युनिटी बनाने का 2 पर्पस थे. क्या होता है कि अगर आप किसी को जॉब चेंज देख रहा है, या कोई ब्रेक पे था या कुछ देख रहा है, या किसी को कुछ फ्रीलांसर चाहिए, किसी के बच्चे के लिए कुछ चाहिए, फॉर इंटर्नशिप देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो रादर गोइंग ऑन जॉब साइट्स लाइक नौकरी एंड मॉन्स्टर, अगर मैं ऐसा कुछ रखूं, उसमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, उसमें कोई हाँ, भी डिस्कशन नहीं होते हैं. इट इज ओनली द जॉब्स. क्योंकि मैं जो काम करती हूँ, आई हैव एन एक्सेस ऑफ आई एम वर्किंग विद 15 कस्टमर्स प्रोफेशनली. वहां पे मेरे पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट मी हाँ, कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे आर मोस्टली टेक्नोलॉजी. हम्म, मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन टेक पोजीशंस पे भी काम करते हैं. मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, लाइक आई हैव प्रियंका फ्रॉम पुणे, शी वर्क्स विद ENY, तो उसकी नॉन टेक की पोजीशंस होती हैं. और कुछ लोग जितने भी ग्लोबली अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं इंडिया में, तो उनकी हम्म, कंपनी से रेफरेंस के लिए जॉब जरूर आते हैं. तो हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जो right, जॉब देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जावा डेवलपर है, एक विमेन, किसी भी एक लेडी अपने कंपनी में, अगर मैं उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हूँ विद अ प्रोडक्ट कंपनी, अगर वो सर्विस में काम करती है, तो वी कैन ऑफर हर और रेफर हर दिस प्रोडक्ट कंपनी जॉब. सो उसकी हेल्प बनेगी उसमें फिनेंसेस में. हम्म, Second thing which my purpose for this job group was, there are many women who are not working, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है ना, हाँ, और ऑल ऑफ अ सडन नाउ दे आर सिंगल. ओके, right, सो उस केस में हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं. हम्म, सो उस केस में हम ये कर सकते हैं, वी कैन जस्ट, मैंने सिटी वाइज आई हैव टेकन द वॉलंटियर्स हु आर हेल्पिंग मी इन दिस, Bangalore, Pune, Mumbai, Hyderabad, and this NCR. So these are the 5 cities initially which we are working. तो वहां पे क्या है कि वी आर आइडेंटिफाइंग सच वुमेन हु हैव नेवर वर्कड. तो हम लोग हम्म, उनको क्या करते हैं, दीज 4-5 वॉलंटियर्स दे टॉक टू हर. हम उसे थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि हम उसे क्या सिखा सकते हैं. हम्म, कि हम मतलब फॉर एग्जांपल मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, अगर मुझे कोई ग्रेजुएट मिलती है लेडी, ठीक है, तो मैं उसको एज अ फ्रीलांसर रिक्रूटर रख सकती हूँ अपने पास, कि आप जो yeah, काम that's करोगे. right, फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉम स्किल अच्छा नहीं है, ठीक है, बिकॉज फॉर अ रिक्रूटर यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कॉम स्किल. yeah, right,
तो आपको इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट और जो भी सर्विस आप दे रहे हो। देन उसके बाद क्या होता है कि एक हमारे रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स होती हैं, ऑफिस एडमिन्स होते हैं, किसी को कुछ आता है नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि वो जो लोकल सिटी वॉलंटियर है वो उनसे बात करें, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें कि हम उसे कितना हेल्प कर सकते हैं टू गेट अ जॉब। लाइक देयर वाज अ लेडी रितुपर्णा इन बैंगलोर, शी वाज हैविंग 3 daughters। वो अभी रिसेंटली मूव आउट हुई थी और कमिंग फ्रॉम अ विलेज टू अ बैंगलोर सिटी डायरेक्टली, शी वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ जॉब, बट वो ग्रेजुएट थी और उसने किसी 1-2 कंपनीज में एज अ रिसेप्शन का काम किया हुआ था, रिसेप्शनिस्ट पे था। तो अब हमारे पास चैलेंज था कि इसको कैसे काम करवाया जाए, आई मीन इसको क्या सिखाएं। तो हम लोगों के पास क्या है कि इफ यू नो, ऑनलाइन आपके पास ना आजकल बहुत टीचिंग मॉडल्स मिलते हैं, स्पेशली कंट्रीज में जो इंडियंस रहते हैं, they are looking for Indians who can teach their children the local languages. There is a lady in our group from Mumbai, she teach Punjabi to the people, students basically, children of the Indians who are staying outside the country. अच्छा, ओके। वो पंजाबी सिखाती हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई इंडियन है, वो कनाडा में चला गया, यूएस चला गया, ही इज फ्रॉम पंजाब, वो चाहता है कि मेरे बच्चे को पंजाबी भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंडियंस को रीच आउट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो दैट लेडी इज वर्किंग एसोसिएटेड विद दैट प्लेटफॉर्म, जो वहां पे उन बच्चों के साथ पंजाबी सिखाती हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं अलग अलग, कोई बच्चे को इंग्लिश सिखा रहा है, कोई हिंदी सिखा रहा है, कोई बंगाली भी सिखा रहा है। सो दैट लेडी इज अ बंगाली, रितुपर्णा। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने उनको वो मुंबई वाली लेडी से कनेक्ट किया, हमने कोशिश करा कि हम इन्हें कुछ ऐसा, मैंने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दूं जहां से ये एटलीस्ट जो इन्हें आता है एटलीस्ट ये वही कर सकें। देन लेटर ऑन शी कैन गेट सम एक्सपीरियंस, हम उसके बाद उनको देख सकते हैं। फिर उसके लिए कोई सोर्स नहीं था, देन वी इंस्टॉल्ड वाईफाई उनके घर पे वाईफाई लगाया, उनको बताया कि कैसे कैसे सिखाना है। तो मेरे जो बैंगलोर से जो भी वॉलंटियर थे मेरे साथ, वो पर्सनली उनके घर गई, उनको समझाया हाउ टू यूज द वाईफाई और ये कैसे करते हैं, कैसे लॉग इन करना है। फिर उनकी बेटी 12th कर रही थी, तो उसकी बेटी को हमने थोड़ा सा और सिखाया कि बेटा आप भी अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो आफ्टर योर बोर्ड्स एंड ऑल। तो दैट चाइल्ड वाज वेरी एक्टिव, उनकी बेटी बहुत एक्टिव थी, तो शी एक्सटेंसिवली टुक पार्ट। तो अभी क्या है कि बोथ मदर डॉटर दे आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस विद द यूएस और यूके काइंड ऑफ थिंग, दे आर टेकिंग 2-3 क्लासेस एंड दे आर अर्निंग 30-35,000। ग्रेट। सो एक ना एक मतलब एक बहुत मतलब एक होता है ना कि आप किसी को एजुकेट नहीं कर सकते बिकॉज एजुकेशन इज अ डिग्री, बट आप किसी को अपस्किल करवा सकते हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपस्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आइडेंटिफिकेशन एंड ज़ील शुड बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कुछ करना नहीं चाहते, वो करना इसलिए भी नहीं चाहते बिकॉज उनका मेंटल ब्लॉक है कि नहीं होगा। तो वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप है, पहले आप उसको मेंटली, उसका साइकोलॉजिकली उसको ब्रेन वॉश करोगे कि यस यू कैन डू दैट, देन आप उसको रास्ता दिखाओगे, देन आप उसको सोर्सेज दोगे, देन आप उसको उन सोर्सेज को यूज करना सिखाओगे, फिर वो अल्टीमेटली खड़ा होता है कि हाँ नाउ आई कैन डू समथिंग। सो ये जो जॉब्स वाला जो प्लेटफॉर्म था उसका क्रिएट करने का एक ये बहुत मेजर पर्पस था, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू 4-5 वॉलंटियर्स हु आर एक्टिवली डूइंग दिस। और मैं दिल्ली में अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है बिकॉज दिल्ली में इट इज लाइक more or less who is not doing anything, they are into healing and coaching. I mean this is a system at present. तो but हम चाहते हैं हाँ more and more people should come because मैं कहने को तो healers और ये सब बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल रिजॉर्ट हो सकता है, बट पर्सनली आई डोंट अप्रिशिएट दैट। एंड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ऑलरेडी इंसान परेशान है, ठीक है, मेरे पास कोई आ रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, आई एम ब्लैंकलेस, मेरे पास एक पैसे नहीं है, जो भी नहीं है, अगर मैं उसको ये बोलूं कि मैं आपको एक थेरेपी बता रही हूँ या मैं आपको एक चैंटिंग बता रही हूँ या मैं आपका ऐसा कुछ उपाय बताऊंगी वट एवर इट इज दैट कॉस्ट यू 15,000, वो कहीं से लोन लेकर आपको 15,000 देगा। उस 15,000 से मैं उसको कुछ और करवा के मतलब उसको मैं उसको काम सिखा दूं उतने पैसे में, और उसको बेटर है कि मैं उसे काम में लगा दूं, है ना, रादर देन मैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्या ना, अगर उसको जॉब मिल गया तो उसका आधा तो टेंशन ही खत्म हो गया। आधा एब्सोल्युटली, बिकॉज क्या होता है ना कि आधा टेंशन आपका फिनेंसेस ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आधा क्या मतलब 99% फिनेंसेस का टेंशन होता है।
जब आपका ये क्लियर हो जाता है, आपका बहुत सॉर्टेड है चीजें. Everything is sorted in that case. सब अपना अपना place हो जाता है चीजों का. Absolutely. That's a So very मेरे important. लिए लेकिन हम तो वैसे we have two people right now, so I think Okay. let's take up Devashri right now. Sure, right. Devashri, can you just switch on your camera and unmute? Sure. Hi, welcome to Women Shine Facebook Live. So Devashri is a part of your community? Hi, she's a part of, and she's a very active volunteer with me also. She helps me with every activity which we plan in Delhi NCR, whether it is So tell me offline or your online. experience, Devashri, like how you are shaping up with this, community. Okay. Let me tell you that the benefit that Yeah. the benefit of this community or this kind of community, right? I would talk about this kind of community first and then proud single parents, right? Of course. Particularly, right? So when I actually, I had been my single parent journey started approximately about. I mean, obviously, I was a single parent kind of in an environment, right? But practically, if I say in a real terms, it started about 8 years ago, right? Okay. As a single parent. But throughout my journey, I never thought of going into any kind of groups, right? It never struck me, frankly speaking, right? And it's not that I didn't feel the need of it, but it never struck me that there could be some sort of help that I can get from external community. And it was really difficult in terms of you do what you can do, right? Yeah. But during the period of time, you do whatever you do, but the problem is that the external feedback that you keep on getting, who have not been experiencing this kind of situation, right, kind of breaks you throughout that journey, right, bit by bit, right? And obviously that no matter you're achieving day by day, right, you're able to survive, but you often get into that kind of zone that okay, you're not doing enough, and that's not that you hear from your kids, right, which is very common thing that you hear from your kids if you do, right, but you hear it from the grown up people, from your elders, from your family, from your everywhere, right, in terms of that you must have done something wrong, right, a very common thought that is seeded in you, right, that gets seeded in you because of all the feedback, and you slowly and steadily you keep breaking down day by day, right, and by the time you achieve, you do not have that capacity to even celebrate that achievement, right, that you're totally bro, right, that's where so that's where that realization wasn't there, but obviously I realized that it is not something that uh, I mean, this is not this type of a person that I want to be, that who is depressed, who is always talking about or not even talking about any problem, right, who's confided, who's not open about their problem, right, you have to first accept it, right, it's like I restricted myself, so that's when I started I was in terms of my mental health, I was in the lowest phase of my mental health at that point in time. Not that I haven't hit lowest phase, but this was one of the phases you call it the dark moment, the dark time, right? That because of your mental health. So that's when I started looking for. I first took the sessions and all, and then I started looking for. That's when I got to know that you should look for some communities. There are Facebook communities for everything that you look for. And then when I started looking for single parent, and considering proud single parents had the maximum followers, so I subscribed to this. I just followed this group, and that's when it all started. Now, often it happens that it is the face-to-face or personal community, personal connect is very important, right? Otherwise, we are all in virtual world. If you don't have that kind of connect, that would not help. So this group actually I think within a month or so after we joined, right, they conducted a virtual session, right, wherein you interact.
And that's when I realized that the connect matters the most, right? And this is where, though I joined couple of few groups, I like you sent requests, right? I sent requests to couple Yeah. of like groups. This was the first group which actually conducted a virtual meet, which actually created a presence that, okay, I'm not alone. Hmm. We all know that when we hear that we are not alone on a television or anything, it still doesn't strike, you still don't connect with them because you feel that they are different, we are different, Yeah. right? Yeah. And even if you don't feel that, your people around you will make you feel that they are different. You created this Right. problem, right? Right. You Hmm. created, you You're need the to, one responsible for this, Yeah. right? Yeah. yeah. So I clearly remember a throughout this journey, I will talk about whatever you want to ask about this journey. But there was one statement I made to my parents and to anyone. Like till the time I joined this group, I thought that I'm the only one, and I have like made some mistakes in my life, right? That have caused this kind of issues, right? And that's whatever it is, right? So, but that's not true, right? Half of the society is struggling with this, and not everybody is like me, right? So, if you're Hmm. just saying that, if as a parent or as a anyone that you're embarrassed, right? So let's not just be embarrassed, right? It is a common thing in today's Yeah. date. We are seeking for a happy society, be it together, be it separated, be it alone, Yeah. right? We are seeking for a happy society. We should appreciate the happy society rather than a toxic society, right? Absolutely. Yeah. People who are going together, who are sticking together, and still they are in a toxic space, right? Yeah. Yeah. We should not appreciate, right? As long it is healthy, be it single, be it together, it doesn't. Hmm. That should be the society that should be Yeah. Of appreciated. course. So I was able to answer that because I knew that. Then now, Hmm. as people would say, you you only see that on television, you only see that on a podcast, right? That's not Yeah. true, right? I have facts, right? हाँ, That nobody accept this thing ना कि ये हमारे घर में हो सकता है. Huh. Exactly. Oh, right. So this it's is good. not fake, Answering it's not all the support. hypothetical, Yeah. it we are one. And I met people. Now coming back to the point that how this society, this group helped. So when you talk, when I said half of the problem is that when your mental health start breaking down, right? Because of all the Hmm. struggles that is going on, with all the criticism that is going around, right? Now Hmm. I'll share in a very very simple statement. A single, I don't want to compare it, but that's the sad part of our community, of our society. A single dad is often seen as with empathy, right? But a single mom is often seen as a stigma, uh, or at the max they will sympathize. They will not empathy. Nobody wants sympathy, right? Hmm. It right, and because sympathy is something that you're putting that person down. You're not considering that person to be an equal, right? Capable of doing things. Hmm. So that's right, and you keep on considering yourself that I am not equal to people. I'm not equal to others. Unfortunately or fortune, I mean, I won't say fortunately or unfortunately, I shouldn't be using these words. Single dads don't have to face these kind of challenges, right? Often they would be given support from the entire family that, oh, poor thing, right? We should Right. have. Right. But for a single mom, there would always be a criticism around it that you should all, Hmm. like, you should do this, you should have done that, you should do this, you should do that, Hmm. right? It would Hmm. always be a criticism that they will be surrounded with, right? Rather Hmm. than be that what you're doing is good enough, right? I think That that's a would be sad part harder. of it. That's a sad part of it that people don't consider that. There's always a negative image towards this. So that's Exactly, exactly. that's a very sad That's the situation. challenge within our society, right? That's Hmm. something that we have to overcome. But I know it would come. It will definitely will reach to that stage. But often we are still far off from that. So it is very important during that journey if we can empower ourselves, right? If we are good enough, if our mental health is good enough, if our mental health is good, our physical health will also support us, right? Yes. Often our because of our mental health, our physical health also goes down
to the brain, right? I would say that we don't take care of our physical. क्या होगा यार health का ख्याल रख के अब इतना तो अब नहीं होता और yeah I cannot do it anymore, right? It is enough for me to do. I am dealing with this so many days. I Yeah. can't do it, right? So that's a common thing. If you ask any single parent, right, they have been through that breakdown. Every single mom, right? Single dads would not have faced this issue as often. I would not be prejudiced about it that they would not have faced it at all. But I would say that I know I mean, my friends and all, Percentage is right? So very I know less. Percentage is less. less, right? But I think every single mom have faced this, right? That they just don't feel like they don't want to cry, they don't want to break down, but there is nothing else that they can do. They feel like I need someone to that I can just hold and I just want to cry my heart out, right? And that kind of breakdown. And you don't feel like that you will see the next day that's the sunlight, the daylight again, right? So that's when you feel that no, you're not alone, right? You need to have that confidence you're not alone. And absolutely you're not alone. Whatever you're feeling is not absurd. Whatever you're feeling is not a loser thing, right? It is something that happens to each and everyone because we are going through a lot, right? So we support True. each other. This community support each other, empower each other, right? Even if it is based on a simple a call, right, video call or a post. With this community, I see that uh, anyone from anywhere, right? They write a post. They might be writing it with their name. They might be writing as an anonymous person, right? They immediately get a response, right? And that too not from their gender. They get responses from opposite gender as well, and very empathetic responses, right? So we are going Correct. empathetic towards our own people, right? Our kind of people. The empathy, we don't know if the empathy was there earlier or not, but it was not measurable. But I can see that can be quantified. Now I can quantify that yes, people do empathize uh, who continue to be in the same condition. Right? You remember that our society used to say that, I mean, often it is often said that women are the strongest competitor of women, right? They would always go ahead and pull them down, right? Those days are gone, right? Those days are gone. Now we celebrate each other's success. We celebrate, we try to pull each other up, right? Wherever you go down. Try to remind each other that where you have succeeded, right? Try to remind you of your success. No matter if everybody else forgets, we are there to remind you that your successes, right? Whatever achievements you've made. So in a personal growth, right? If I talk about it, this uh, as a this group has really helped me in my journey, right? And I know what I was a year back, right? And now who I am. I have found literally what I lost in my marriage and in my single parent journey as a true self of devotion, right? Which I got back in this 1 year of my partnership or my whatever you call it, right? My being with this group, right, has helped. So that has really improved my personal thing, right? I've improved my persona, so I've got everything back, right, that I lost. Amazing, in this amazing. journey. Wonderful, Devashi, wonderful. I think, yeah, we have one more male person. I don't know whether he's from your community or not. Let me just take him on the stage. Yeah. Mr. Rajiv Pandey, are you there? Mr. Rajiv? He joined, I guess, but I'm not sure whether he's there on the Yeah, call. yeah, yeah. Let me put him backstage then. So yes, what I feel that this is basically like what Devashi mentioned also, like the way she has evolved, with the community. I think it's all in the mind, and then you know what, people will talk. We will not be able to change the society at all. ये तो होता ही रहेगा. Just चलता that रहेगा ये. we need to really give importance to ourselves. We should keep ourselves happy. Do whatever you like जो आपको खुश रखे.
एंड सोसाइटी तो बोलेगी, उसको तो सुनना ही Even नहीं your है. family is also, you know, आपके family members होते, they don't understand your challenge. हाँ, उनको लगता है बिल्कुल कि हाँ क्या बिल्कुल. प्रॉब्लम है, तुम So जॉब just be करते हो, deaf तुम्हें क्या ears to प्रॉब्लम them, है. and हाँ and just do what you like, because हाँ after राइट. all it is you, your children. आपको आगे बढ़ना है, and if you बिल्कुल don't do बिल्कुल anything, who will give the money, right? You need to राइट. be independent as well. You can't depend upon anybody else's money. ट्रू So राइट. I think हाँ most important focus should be to generate your own income and ट्रू look after वेरी children. मच. And हाँ उनको अच्छा राइट. एजुकेशन दो, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई जरूरत ही नहीं कुछ और चीजों का. And be happy and be a proud बिल्कुल. member of the society, I हाँ, guess. that is the reason this group is named as na proud single parents, because we are very Yeah. much proud of what we are doing. We don't have any regrets. You know, we Hmm. don't have any kind of, you know, backlifting There thing shouldn't that, be you any know, regrets, you know. There right. shouldn't be, because यार देखो, हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं, we do mistakes, right? And we do good things as well. तो why should we True. regret in a life as well? तो Right. चलता है वो तो, that's a part of life, you know. You need to move on in your गलतियां life. होंगी और हम अपनी गलतियों से सीखते भी हैं, सो दैट यू नो हम बिल्कुल उससे बिल्कुल. रिपोर्ट नहीं करें. और दूसरा Yeah. क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि हमने जो गलतियों से सीखा वो हमारे बच्चे भी सीखें, सो दैट यू नो हाँ उन्हें बिल्कुल. पता लगे कि हाँ. और वो तभी हो पाता है जब पेरेंट एक्सेप्ट करता है, यू नो, कि हाँ हाँ यस आई डिड दिस मिस्टेक, तभी तो वो बच्चा समझेगा. बिकॉज जनरली पेरेंट डोंट एक्सेप्ट ना कि हाँ, हाँ उनसे भी वही गलती वही होती प्रॉब्लम है. ये होती है, बहुत राइट. इंपॉर्टेंट हमारी इंडियन सोसाइटी का पार्ट है बिल्कुल. कि पेरेंट्स नेवर एक्सेप्ट. लेकिन अगर हम अपने बच्चे के सामने एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दिस इज द मिस्टेक वी डिड एंड वी रियली वांट कि अब तुम ये नहीं करो, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द चेंज. मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है सोसाइटी में लाना. एंड मुझे लगता है आप आजकल बच्चे बहुत समझदार हो रहे हैं. इवन दे आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या है, वेरी क्या मच. इक्वेशन है. तो दे वेरी आल्सो मच. वेरी यू नो फेमिलियर विद. अब वो टाइम नहीं रह गया बहुत पहले वाला कि आप बहुत समझाओ. सो दे आल्सो हाँ अंडरस्टैंड. यू जस्ट नीड टू बी विद इफेक्टिव देम. कम्युनिकेशन हो गया है क्योंकि हम बच्चों से काफी ओपनली बात करते हैं. देखो व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगल पेरेंट, आपका क्या होता है, आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा कॉन्वर्सेशन बच्चे का एक मोड ऑफ से है. तो एटलीस्ट हाँ बच्चे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी पेरेंट्स के यहाँ बच्चे देखे हैं, और मैंने डुअल, आई विल नॉट से कि वो बच्चे अच्छे नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैंने देखा है कि जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, चाहे वो मदर्स हो या सिंगल फादर्स की जो डॉटर्स हैं, स्पेशली देयर आर मेनी फादर्स हु आर रेजिंग सिंगल डॉटर्स इन आवर ग्रुप, राइट. सो जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ, दे आर वेरी यू नो सेल्फ डिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट. उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, एंड बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखने वाले. अपने जो लड़कियां हैं वो अपने फादर्स का बहुत ध्यान रखती हैं, जो बेटे हैं वो अपनी मदर्स के साथ क्लोजली या बॉन्डेड है कि यस वी आर देयर विद यू, डोंट वरी. तो या एक ये देखकर ना बहुत अच्छी वाइब आती है कि यस यू नो यस. नाउ एटलीस्ट आपका जो प्रोसेस था, आपका जो एक विजन था विच यू इनिशिएटेड कि हाँ यू नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. सो इसको मैं और आगे ले रही हूँ. जस्ट रिसेंटली वी विल बी गोइंग टू कन्वर्ट दिस इज इन अ ट्रस्ट, राइट. बिकॉज अभी क्या है कि हम लोग फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करते हैं. So I'll be going ahead with, you know, people. I have spoken to this lady, female of BJP in Gurgaon. So she'll be making me meet next month this NCW commission in Delhi. So I'll be meeting her Okay. personally. She'll take me along, and I'm just trying to get some kind of legal help so that वो लोग जितना फाइनेंशियल जिनका स्ट्रांग नहीं है और वो केसेस में अटके हुए हैं, सो दैट हमें कुछ ऐसे लॉयर्स का एक्सेस मिल सके, सो दैट यू नो आई कैन गिव अ फ्री हेल्प. और भी बहुत या सारी चीजें हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट है. मुझे ऐसे, मैं उस जो अथॉरिटी है, मैं उनसे मिलकर यही कहना चाहती हूँ कि मतलब यू नो वी शुड गेट हेल्प, बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी विच इज नेवर बीन एड्रेस्ड. क्योंकि हम लोग एक जो ओवरव्यू, जो एक कम्युनिटी है हमारी इंडिया के अंदर, ये जो सिंगल पेरेंट है, टर्मिनोलॉजी किसी को पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो लोग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, ये भी एक नई चीज है. कुछ लोगों के लिए तो नई चीज होती है. लोग मुझे कई बड़े यू नो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, व्हाट, ये क्या करती हो तुम. हाँ तो ठीक है ना, मतलब कई लोगों को समझ नहीं आता. तो दिस इज हाउ यू नो मैं इसको और एक्सपैंड करना चाहती हूँ. वी नीड मोर वॉलंटियर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, जो कि हम अभी जो मेजर लेवल पे जो काम हो रहा है, इट्स इन दिल्ली एनसीआर बिकॉज आई एम हियर. तो मैं चाहती हूँ कि हमारी और सिटीज में स्ट्रॉन्ग लोग, जिनका ना एम्बिशन, या एम्बिशन कह लो, विजन ज्यादा इज अ गुड वर्ड, कि जिनका विजन यही है कि दे वांट टू एम्पावर सिंगल पेरेंट्स, राइट. राइट. तो ऐसे लोगों को और टीम में जोड़ना, सो दैट इट विल बी अ चेन यू नो की ऑफ आर कम्युनिटी, जिसमें हर सिटी का, हर स्टेट का एक अलग लीडर हो. That you know, अब ये आपका शो है, now run the show, okay. You राइट. have this has been created and you have been designated this. अब आप अपना काम करो जो हमारा एक पर्पस है. So I'm very much hopeful कि going forward in coming few months we'll be doing much more better than what we are doing now. और हम और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे. It's so wonderful.
So I think your roadmap is totally set, but just need to put timelines and then everything is set, all set, go. हाँ राइट, बिकॉज मुझे पता है कि व्हाट इज द हमारा जर्नी क्या रहेगा, उसमें क्या ब्लॉकेजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस हमने देखे हैं, आइडेंटिफाई किए हैं मैंने पिछले 4 साल में. तो अभी मुझे पता चल गया है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है लोगों को. एंड आई फील कि अकेले आप नहीं कर सकते हो, और सबसे पहले आपको वही लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके जैसे हैं. And there are many people, you also, right? So you are also doing the same thing, bringing together all the communities together at one forum, so that चाहे वो आपका business model में जो आप लोगों को help करते हो, that's the social communities which we are doing, चाहे हम इस तरह से single parenting communities, that was really, I thought कि from Lucknow you can also lead us, so that we can just expand this thing. So because it is a cause, and I want to run this cause as a national thing कि हाँ, this is what we are doing, and हम लोग भी कुछ हैं, हम लोग एक सोसाइटी के कॉर्नर का पार्ट नहीं है, हम साइड में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है. We are the people who are making the society. So ऐसा वाला है कि बहुत बढ़िया. It was wonderful, Nidhi, and more power to you for this initiative. Thank you so much. Yes, you will really rock. बहुत बढ़िया रहेगा, and I'm there to support you, whatever you support. Definitely. Every time, no, definitely. If I'll have anything, because you are more experienced than me, you have more understanding, more knowledge. So it's always good to communicate with people who can, give you certain addition. So वो आपको एक अच्छे से और ज्यादा इंट्रीग रखता है इस चीज को लेकर कि हाँ, जितने नॉलेजेबल लोगों से मिलोगे, जितने एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, उतना ज्यादा सीखोगे आप. And every day is a learning. It's always good to learn good things and implement. Yeah, definitely. सबसे बात करके अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो अच्छी चीजें होती है, उन्हें सीखना बहुत जरूरी है. Yeah, great. So thank you, Nidhi, so much for this. Thank you so much. Thank you so much, Aparna ma'am. And this is a wonderful initiative. We all are there for it. So let's rock together. Yes, right. We'll do for sure. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye-bye. Good day. Bye. Good day to you.